Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham Junior College. In last lecture, we started with the entrepreneurship development. In that, there are there are two process of entrepreneurship development. That is, first was training and second was the startup India. Right? In that training, what we see, like there should, if we give proper training to an employee, so like to become an entrepreneur, he can be an entrepreneur also. So in that training broadens the vision of an entrepreneur by providing them proper opportunities, right? Training is a process through which we can develop, we can give him proper knowledge which will help him to boost himself. उसका self confidence बढ़ेगा. There are certain methods of training like lecture method, demonstration method, individual instructions, group instructions, meeting, conference, seminar, etc. Second was the entrepreneurship development program. It was a program designed to help the people in strengthening his entrepreneur motive and acquiring skills and capacity necessary for playing his entrepreneur role efficiently. First it was started in Gujarat. Now we saw the steps for the development, then we saw the objectives, then we saw the Startup India plan. What was the Startup India plan? It was the initiative which was taken by the government of India. Like it came up with the Mudra scheme. बैंक में जो चल रहा है अभी मुद्रा scheme. Then certain announcement will be made like simplification and hand holding. Simplification and hand holding मतलब उसने entrepreneurship start करना and wind up करना. They made it as a simple process. Then it started providing proper funding. Then industrial academic partnership and incubation, like proper training दो private entrepreneur जो है उनको बोला give some proper training so that we can have new entrepreneur. Then objectives of startup were rupees 10,000 crore startup funding pool, reduction in patent registration fees, improved bankruptcy code to ensure a 90 days exit window, freedom from tax for first 3 years of operation, encourage entrepreneurship within the country, promote India across the world as a startup hub. Now today we are going to look for an stand-up India. A stand-up India scheme for financing SC, ST and or women entrepreneurship. जो startup था, it was basic for everyone. Now this stand-up India scheme is basically, it is just for the financing of SC class people, ST class people or an woman entrepreneur. Now objectives of the Stand-up India scheme. The objective of Stand-up India scheme is to facilitate bank loan between 10 lakh and rupees 10 crore to at least one individual, one scheduled caste or one scheduled tribes borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up an greenfield enterprises. इससे क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग है ना SC क्लास ST क्लास वुमेन इनको हेल्प कर रहे हैं so that they start up with their own business like up to between rupees 10 lakh to 1 crore. This can be in any field like मैन्युफैक्चर सर्विस में वो लोग फाइनेंस कर सकते हैं. Indian government will finance you. It can be a trading sector. In case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholdings and controlling stake should be held by either an SC, ST or women enterprises. Non-individual enterprise यानी जो public enterprise चल रहा है उसके अंदर 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC or ST class or a woman enterprises. Now there are certain criteria for that. First one is the eligibility. Eligibility यानी क्या, वो जो भी है SC class ST class जो भी belong करता है or an woman, it should be above 18 years. Unless and until you are 18 years you won't be able to run any business क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज किसी का रहता ही नहीं है. When you complete the 18 years तब भी आपको थोड़ा सा नॉलेज आता है
तब भी आप पे जिम्मेदारी आती है, तब भी आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. सो 18 years इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. Second point would be the loans under the scheme are available only for greenfield project. हाँ, greenfield signifies the first time venture of the beneficiary in the manufacture or service or trading sector. मतलब वो पहली बार इसमें काम कर रहा है. सेकेंड इज नेचर ऑफ लोन. नेचर ऑफ लोन कैसा हो गया? इट शुड बी बिटवीन 10 लाख till 1 करोड़. इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा. लाइक बियॉन्ड 1 करोड़ यू वोंट गेट एनी लोन. देन व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ लोन? क्यों चाहिए आपको लोन? फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर. पर्पस ऑफ लोन वेरी क्लियर है. या तो आपको ट्रेडिंग में घुसना है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है, या तो सर्विस सेक्टर में घुसना है. देन साइज ऑफ लोन, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड अ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. 75% आपको लोन मिलेगा. हाँ. देन इंटरेस्ट रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम रहेगा क्योंकि इट इज़ फॉर द ST and women enterprises. So interest rate of interest would be very low. Security, beside primary security, the loan may be secured by collaborated security or guarantee of credit guaranteed fund scheme for stand up India loan as decided by the bank. ये बैंक डिसाइड करेगा आपको सिक्योरिटी आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं, वॉट एवर दैट. देन रीपेमेंट, the loan is repayable in 7 years with a maximum monetarism period of 18 months. आपको 7 years के अंदर आपका लोन रीपेमेंट करना शुरू करना है. लाइक एट द मैक्सिमम आफ्टर 18 months, लाइक 2.5 years के बाद आपको थोड़ा रीपेमेंट ऑफ लोन शुरू करना पड़ेगा. नाउ वर्किंग कैपिटल, फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakh the same way may be sanctioned by way of overdraft. आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है. वर्किंग कैपिटल का लिमिट कितना होगा? 10 लाख. हाँ, टू बी सैंक्शनड बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट. देन मार्जिन मनी, द स्कीम 25% ऑफ मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कॉन्वर्जेंसी विद एलिजिबल सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम. लाइक 25% आपको सेंट्रल या स्टेट से मिल जाएगा आपको. So this were the basic criteria. Now agro-tourism, new approach towards entrepreneurship. अभी एग्रो-टूरिज्म यानी क्या? एग्रीकल्चर फील्ड में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आज मिल रही है. कैसे मिल रही है आपको एग्रीकल्चर फील्ड में नई अपॉर्चुनिटीज़? एंड हाउ दिस एग्रीकल्चर इज़ नाउ फ्लरिशिंग सो मच कि लाइक एवरीवन, अभी हर कोई बड़े इंडस्ट्रियल भी एंटरप्रेन्योर भी है ना, आज एग्रीकल्चर फील्ड में घुस रहे हैं. वाई? क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ वास्ट फील्ड और आपके पास पैसा है, आप जितना डेवलप करोगे आपको उतना मिलेगा. लाइक कल्टिवेटिंग ब्रोकली, सैलरी, पहले ये सब इंडिया में मिलता था क्या? नहीं. बट आज ये सब इंडिया में मिल रहा है. कैसे? इट्स अ जस्ट दैट ग्रीन हाउस, डेवलप द ग्रीन हाउस. अपने वो रोजेस वगैरह देखते हैं आज इंडिया वो रोज़ वगैरह भी एक्सपोर्ट कर रही है. सो एग्रीकल्चर, ये दिस इज नाउ द फ्लरिशिंग. और गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग अप विद द एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रही है. इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच विथ हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और द रीजन वेयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड. आज सी वी लिव इन द सिटी एंड ऑल. अपने को पता है कि आज फार्मर कहाँ से कैसे कितना मेहनत करके ग्रो करता है, कैसे क्या करते हैं, राइट? नहीं, अपन इतना ध्यान देते. जस्ट वी गो टू मार्केट, वी बाय ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो चाहिए वो लेके आओ, वी कुक देम, वी ईट देम, फिनिश्ड. हाँ, बट वो मार्केट तक लाने में द फार्मर हैज़ टू टेक सो मैनी ट्रबल. अगर फार्मर के ने अगर ग्रो करना छोड़ दिया तो आप खाओगे क्या? दुकान में आएगा क्या? शॉप्स में आपको मिलेगा क्या? Wheat, rice, bajra, everything is grown through agriculture itself. Agriculture things are the basic need today, but many people don't know
how they are produced, from where they come, and in today's world people are least bothered about that, right? Agrotourism offer tourists a chance to reconnect with the land and provide a hands-on experience with local food. एग्रोटूरिज्म क्या है? ये एक टूरिस्ट है जिससे आप अपनी लैंड से, अपनी मातृभूमि से कनेक्ट हो सकते हो एंड आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है कि आप लोकल फूड कैसे ग्रो कर सकते हो, आप लोकल में भी कैसे बेच सकते हो, राइट? लाइक बेस्ट एग्जाम्पल शुड आई से दिस सुहाना मसाले वाले, दे लिव इन आवर सोसाइटी ओनली, ओके? दैट चोरडिया प्रवीण मसाला, सुहाना मसाला जो भी मिलता है ना अपना, वो चोरडिया का है, वो अब हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, दे लिव जस्ट इन द नेक्स्ट लेन. तो एवरी डे ना उनका एक आदमी आता है, ही कम्स विद द वेजिटेबल, ही सेज कि बाबा ये सारे वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक है, हमारा फार्म में है, वी ग्रो देयर, एंड ही सेल्स इन आवर सोसाइटी इटसेल्फ. और वो भी रात को आता है, ही कम्स इन द इवनिंग, लाइक सुबह से शाम तक काम करो, शाम को वो सब्जी सोसाइटी में बेच देते हैं, एंड दे आर रियली गुड. कभी कभार कुछ चीज़ें मार्केट प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लाइक 5-10 रुपीज इज मोर, बट दे से कि दिस वेजिटेबल्स आर ऑर्गेनिक, राइट? सी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग लोकल फूड लाइक भिंडी, कोथम्बीर, अपना मेथी, दिस आर ऑल व्हाट आवर लोकल फूड, दिस आर आवर बेसिक नीड्स, राइट? ये तो रोज़ की सब्जी अपन खाते हैं, यही आपको वो लोग क्या करके बेच रहे हैं इन अ ऑर्गेनिक वे. क्यों? आज अपने को पता है फार्मर्स बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स सब यूज कर रहे हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो दे केम अप विथ एन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड दे स्टार्टेड सेलिंग दिस वे. एग्रोटूरिज्म फोकस ऑन ट्रैवल दैट इज एम्पावरिंग अ लोकल कम्युनिटी बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली. एग्रोटूरिज्म क्या है? ये प्रमोट कर रहा है, एक कम्युनिटी को सब साथ में ला रहा है, सो बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली. Recognizing the need to diversify their farm produce and supplement their agriculture income, many farmers considered agrotourism as one of the income option for the long term substantial of their farm. Farmers लोग भी क्या कर रहे हैं, अरे यार एग्रीकल्चर में ही रहते हैं अपन, we will produce only agriculture goods. क्यों? This is never ending business. ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि these are the basic needs and people will continually go on buying it. So agrotourism can support agriculture economy when local producer can no longer compete economically. तो एग्रोटूरिज्म क्या है? ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है. सी इंडिया इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंट्री. सो एग्रोटूरिज्म क्या करता है? अपने एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है और अपनी इकोनॉमी भी बढ़ाने को भी हेल्प करता है. द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट. स्मॉल लैंड होल्डर्स जो है वो क्या है? मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द स्टेट है. थोड़ा सा भी लैंड रहा, यू कैन यूटिलाइज इन द बेटर वे, सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्पेसिफिक स्टेट. नाउ विल लुक एट द डेफिनेशन. एग्रीकल्चर इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग. एग्रीकल्चर क्या है? ये जो लोग अर्बन में रहते हैं उनको रूरल की ओर अट्रैक्ट करो. क्यों? फॉर देयर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग. आज लोग क्या करते हैं? आज बहुत से लोगों ने क्या किया है? फार्म हाउस वगैरह बिल्ड किया है. कहाँ पे बिल्ड किया है? सिटी से दूर. क्यों सिटी से दूर फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं? सो दैट दे कैन हैव अ पीसफुल लाइफ फॉर सम टाइम एंड दे कैन स्पेंड देयर मनी. फिर वहीं पे उसी फील्ड में थोड़ी सी जगह पे उन्होंने दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग बेसिक क्रॉप्स लाइक बेसिक वेजिटेबल्स. दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग ओवर देयर. क्यों? फ्री टाइम भी मिल जाएगा और अपने को अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, राइट? सो now we will look agrotourism in Maharashtra. The state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agrotourism in the country. महाराष्ट्र स्टेट क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे एग्रोटूरिज्म प्रमोट हो रहा है. एग्रोटूरिज्म as it is defined most broadly involves any agricultural based operation or activity that brings visitor to farm.
आज एग्रो टूरिज्म क्या है? एक एक्टिविटी है जो बहुत से लोगों को फार्म की ओर अट्रैक्ट कर रही है. वाई दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द फार्म? क्योंकि दिख रहा है ना उनको कि फार्मर कितना मेहनत कर रहा है, दिख रहा है. सो दे रियली एंजॉय दिस. हाँ, बिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट देर आर मेनी अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू मैनेज अ फार्म बिजनेस. अभी फार्मिंग कर रहे हो, आपका एक ही काम है क्या? बेचना, वो ग्रो करना और बेचना, एक ही काम है क्या आपका फार्मिंग करना? यानी नो. बिसाइड बाइंग एंड ग्रोइंग एंड सेलिंग देर आर मेनी एस्पेक्ट टू बी मैनेज्ड. लाइक सी, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड. सबसे पहले आपको लैंड देखना पड़ता है, लैंड की क्वालिटी देखनी पड़ती है, फर्टिलिटी देखनी पड़ती है. हाँ, आप उस पर क्या ग्रो कर सकते हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. देन वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द रेनी डेज. हाँ, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, राइट. आफ्टर दैट देर आर सर्टन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दैट. फर्स्ट एक्टिविटी इज लाइक आउटडोर रिक्रिएशन. What do you mean by outdoor recreation? Like trekking, fishing, hunting, wildlife study, horseback riding. वो लैंड आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो? इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रेकिंग तो ट्रेकिंग डेवलप करो वहाँ पे. फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी के लिए, हॉर्सबैक राइडिंग के लिए. इफ़ दैट लैंड कैन बी यूज्ड, यू कैन यूज़ दैट. टूरिज्म के लिए वो डेवलप करो. तो क्या होता है? एग्रो टूरिज्म. आजकल अपने पूना के बाहर भी कितने फार्म डेवलप हुए हैं जो एग्रो टूरिज्म फार्म बोल के है. क्या है वहाँ पे? एग्रीकल्चर फार्म भी है. हाँ, फार्म है, प्लस दे हैव डेवलप स्मॉल पूल और थोड़े आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ रख दिए एंड दे स्टार्टेड अप विद द फार्म एंड ऑल. हाँ, स्पेशली इफ एनीवन नोज अबाउट दिस हुरडा पार्टी एंड ऑल. हुरडा पार्टी कहाँ होती है? यूजुअली फार्म हाउस इज टेकन फॉर द हुरडा पार्टी. फार्म रहता है और उधर हुरडा पार्टी होती है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हुरडा पार्टी चलती रहती है पूना के आउटस्कर्ट्स में. मैनी ऑफ माइट बी अवेयर ऑफ दिस हुरडा पार्टी. क्या रहता है? फार्म जैसा ही फीलिंग आता है ना, वहाँ पे जाते हो तो यू आर सपोज टू सिट डाउन. फिर वो पेपर प्लेट्स में वगैरह सारा खाना वगैरह आता है. ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन खाना मिलेगा आपको वहाँ पे. राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल हाई टी दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. राइट, दैट इज वाई सो दे हैव डेवलप्ड दैट प्लेस ना. फिर देर यू हैव अ बुलक राइड, कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, ये सब वो लोग डेवलप करते हैं. फिर टेंट वगैरह बैठते हैं. इंडोर गेम्स दे डेवलप. राइट, इंडोर गेम्स लाइक यू कैन प्ले कैरम एंड ऑल और सच थिंग्स एंड ऑल. कंटिन्यू एक्टिविटी यू कैन फाइंड दैट. फिर उनका ही एक पीछे किधर साइड में फार्म रहता है. दे टेक यू टू द फार्म. they tell you everything about the farm. Say this is grown here, how this is grown and all. So वैसा प्रॉपर पूरा डेवलप किया है उन्होंने. दैट इज नथिंग बट अ आउटडोर रिक्रिएशन. देन एजुकेशनल एक्सपीरियंस लाइक फार्म एक्सपीरियंस, राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन द चूल्हा एंड ऑल. आज भी आप विलेज में जाओगे ना, लाइक इफ यू गो टू प्रॉपर ट्रेडिशनल विलेज, व्हाट यू विल सी? You will see plantation. They are planting in a proper traditional way itself. Even अभी तो भी बहुत से स्कीम्स वगैरह आ गए तो लोगों के घर में गैस है. पहले तो they used to cook on that चूल्हा. If you see, I don't know, you have seen चूल्हा and all, I don't know, but ट्रेडिशनल खाना वो लोग चूल्हे पे बनाते थे. और आज भी चूल्हे पे बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है देन कम्पेयर टू गैस. जस्ट सी, आज भी बहुत जगह देर इज अ बोर्ड लाइक चूल्हावरची भाकरी मिळेल एंड ऑल. When you go on that highway and all, बहुत जगह पे एडवर्टाइजमेंट ऐसे की जाती है. दैट इज नथिंग बट अ एजुकेशनल एक्सपीरियंस. सी, आजकल आप बच्चों को ये सब ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं है, बट वी लिव्ड इन फार्म्स एंड ऑल, वी हैव सीन दिस ऑल, सो वी नो दिस चूल्हावर्स एंड ऑल, वी हैव ईटन दिस चूल का खाना वगैरह हम सब ने खाया. बट आजकल की जनरेशन को दे डोंट नो ऑल दिस. नाउ नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. सी, एंटरटेनमेंट में आप क्या बोल सकते हो? जो हुरडा पार्टी मैंने बोली ना, जो महाराष्ट्र में बहुत चलता है, स्पेशली दिस औरंगाबाद साइड, नगर साइड, ये हुरडा पार्टी बहुत चलता है. आज भी बोलते हैं नगर का हुरडा बहुत टेस्टी रहता है एंड ऑल. हुरडा पार्टी इज नथिंग बट अ सिंपली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जहाँ पे आपको प्रॉपर फार्म का फीलिंग मिलेगा, सब मिलेगा. इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी सर्विस.
हॉस्पिटैलिटी सर्विस मतलब फार्म स्टे, गाइड टूर्स एंड आउटफिल्टर सर्विस एक्सेट्रा। लाइक फार्म में आपको स्टे करना है पूरा दिन, छोटे छोटे टेंट बांधे रहते हैं, देन यू हैव टू स्टे इन दैट टेंट एंड ऑल। आजकल फार्म में बहुत ये चल रहा है, फार्म अभी जहाँ पे फार्म्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे वो लोग छोटे छोटे रूम्स बांध के दे देते हैं। देर आर स्मॉल स्मॉल रूम्स, लाइक यू कैन एंजॉय होल डे इन द फार्म एंड नाइट स्टे यू कैन डू देयर। दैट इज नथिंग बट अ हॉस्पिटैलिटी सर्विस। फिफ्थ वन इज ऑन फार्म डायरेक्ट सेल। हाँ, लाइक यू पिक ऑपरेशनल और रोड साइड स्टैंड, लाइक फार्म से आप डायरेक्ट कलेक्ट करके लेके जाओ जो भी है। हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न। जो कस्टमर बहुत खुश हुए रहते हैं फार्म के आइडियाज एंड ऑल, दे विल कम बैक डेफिनेटली। देन देर आर फार्म, बहुत से लोग अपनी, अगर उनको पसंद आया, दे टेक देयर फैमिलीज फ्रेंड्स टू द फार्म। हाँ, सो फिर फार्म में भी लोगों ने फिर अभी बहुत से फार्म में क्या चालू किया उन्होंने, they have their own cows and all and they sell the cows milk and fruits and vegetables। फार्म में लोगों ने अभी ये भी चालू कर दिया बिजनेस। सो अगर जिनका फार्म हाउस वगैरह है ना, उनको लाइक दे हैव देयर ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह सब उनको फार्म हाउस से आता है। सी बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, एट माई मॉम्स प्लेस वी हैव फार्म हाउस ऑन द मेन रोड इटसेल्फ, हाईवे पे ही फार्म हाउस है हमारा। सी देर इज़ अ बिग लैंड, वहाँ पे पूरा कल्टीवेशन वगैरह होता है, और एक पोर्शन में वी हैव अ प्रॉपर फार्म हाउस। लाइक आप फार्म हाउस में ऊपर जाके अगर आप बैठोगे करोगे ना, एज सुन एज यू ओपन द विंडो यू विल सी फुल ग्रीनरी, लाइक कंप्लीट लॉन है, वी हैव अ प्रॉपर स्विमिंग पूल एंड एक्सेट्रा। एंड आज भी मम्मी के यहाँ पे, मेरे मम्मी के यहाँ पे, आपको मम्मी के यहाँ पे दूध वगैरह सिर्फ फार्म हाउस से आता है। लाइक वी हैव ओवर देयर काऊ, बफेलो, गोट, सब वहाँ पे है, और फार्म हाउस से ही वो सब मिल्क वगैरह आता है। एंड वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म इटसेल्फ, फ्रॉम आवर फार्म डायरेक्टली वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑलमोस्ट बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको फार्म से ही आते हैं। लाइक इवन टुडे वी गेट लाइक चिक्कू, गोवा। सी गोवा वी गेट ऑफ वाइट कलर एंड पिंक कलर, दोनों कलर के गोवा आते हैं। इवन टुडे दे आर ईटिंग मैंगोज एट माई मॉम्स प्लेस, क्योंकि कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस आपूसम देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैंगोज अदर, सो वो अभी आ रहे हैं, सो दे आर एंजॉइंग दैट। तो क्या हो रहा है, हमको मिल्क आता है फार्म हाउस से, तो उसका बटर वगैरह, फ्रेश फ्रूट, सब 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 फिर फार्म हाउस से। अभी चिक्कू आ रहे इतने सारे, दे वी हैव दैट बनाना, कौन सा बनाना बोलते हैं वो, इलायची केला एंड ऑल, दैट स्मॉल स्मॉल बनाना, देसी केला। बनाना में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये इतने नाम है कि मेरे को भी नहीं पता अभी तक तो सारे। लाइक पूना में अपने जो मिलते हैं ना इतने बड़े बड़े बनाना, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, बस वो इंजेक्शन दे के बड़े किए हुए रहते हैं। वी गेट द प्योर बनाना। इफ़ माई मॉम एंड ऑल दे कम ना, वो पूरा बनाना का एक बड़ा बंच लाते हैं, एंड आई वी रियली एन्जॉय दैट। सो फार्म, दिस इज नथिंग बट एन agro based industry is developing right now. Now the last topic of this chapter is the intrapreneur. Intrapreneur कौन रहता है? See, if I am an entrepreneur, I am starting my own business. हाँ, अभी मुझे सपोर्ट करने के लिए I need some employees and all, so those employees are called as an intrapreneur. और क्यों entrepreneur? क्योंकि he is supporting me, even he is coming with his own idea and innovation. So an entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company or employer to implement his own innovative and creative idea. Entrepreneur क्या है? ये एक एम्प्लॉय है जिसको वी हैव गिवन हिम प्रॉपर सपोर्ट एंड ऑथोरिटी, कंपनी ने दिया है, सो दैट उसके नए थॉट्स, नए आइडियाज ही कैन इम्प्लीमेंट। हिज आइडिया और प्रोडक्ट में नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू टू द कंपनी। सी, कभी कभार उसके आइडियाज तुरंत कंपनी को बेनिफिट नहीं हो सकते, बट स्टिल उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी। उसका आइडिया है, उसका सब है, बट आज काम नहीं कर रहा है, कल काम कर पाएगा, बट वो काम तो करेगा एक ना एक दिन, तो उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना आपको। सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट द रिस्क जो भी है, द लेटर फाइनेंशियल रिस्क विल द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट। एंटरप्रेन्योर को क्या है, एंटरप्रेन्योर को जो भी उसके जेब से पैसा नहीं लगाना है, बस उसका आइडिया, उसका थॉट,
वो दे सकता है, उस पर कंपनी काम कर सकती है, कंपनी विल सपोर्ट हिम, बट उसके आइडिया से जो भी लॉस बेयर करना होगा ना वो एंट्राप्रेनर को फेस करना पड़ेगा, नॉट द इंट्राप्रेनर। कंपनी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, पूरा रिसर्च डेवलपमेंट, अगर उसको कुछ इफ इज केपेबल, कंपनी विल गिव हिम प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, राइट। सो इन इंडिया टाटा मोटर्स, इन्फोसिस are such company who are encouraging entrepreneurship. The definition of entrepreneurship is an entrepreneurship is an enterprises within an existing organization. वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में ही एक एंटरप्रेन्योरशिप बोल के काम कर रहा है. एक्चुअली इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरशिप बट ही इज हेल्पिंग. उसके आइडिया, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इसलिए उसकी आइडियाज पे अपन पैसा लगा रहे हैं. सो ही इज एन एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship are the dreamer who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business. इनका सपना है, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. They come up with innovation idea so that the business can run in a better way. So this was all about the intrapreneur. So today we have winded up with our third chapter. Next lecture we'll start with the fourth chapter. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID, that is rasika.pagaria@arahamedu.com in. Thank you.